Hello students, today our topic is secant method and regular fallacy method from the book of numerical analysis. Here we start with the function f of x. If function f of x equals to 0 is a first degree equation in x, then it can be readily solved. Now we study the iteration methods which will produce exact results whenever f of x is 0 is a first degree equation. If we approximate f of x, any function f of x, by a first degree equation in the neighborhood of the root, then we may write at f of x is equals to a naught x plus a1 is equals to 0. With the solution of equation 1 is given by x is equals to minus a1 over a naught, which is our equation number 2. Okay, where a naught is not equal to 0 and a1 is any arbitrary constant. As we are going to discuss two methods simultaneously, where first method is secant method, which is also known as chord method, and the other one is regular fallacy method, which is also known as false position method. So let's start. Here we assume if f of xk or xk minus 1 and xk, these two are two approximations to the roots of equation f of x, then we determine a naught and a1. हम a naught और a1 की वैल्यूज़ को डिटरमाइन करेंगे अगर हम ये मान के चलते हैं कि xk1 minus 1 and xk are two approximation to the roots in equation number 1. By using the conditions, क्या conditions रहेंगी कि f of k minus 1 is equals to a naught xk minus 1 plus a1, that is the value we have substituted xk minus 1. एक रूट जो हमें मान के चल रहे हैं इन दोनों के बीच में या इन दोनों पर रूट लाई करेगा, अगर रूट लाई करेगा तो xk minus 1 हमने x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. तो f of k minus 1 is equals to a naught xk minus 1 plus a1 बन जाएगा. And another equation become fk is equals to a naught xk plus a1, जहाँ पर fk minus 1 का मतलब है फंक्शन की वैल्यू एट xk minus 1 और fk की वैल्यू का मतलब है fk is equals to f at xk. इन दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास. अगर दो इक्वेशंस बन चुकी हैं हम उनको सॉल्व करेंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब है वी हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ a नॉट एंड a1. जब हम सॉल्व करें इन दोनों को तो हमारे पास a नॉट की वैल्यू, ये सिंपल इक्वेशंस हैं, ये आप ऑटोमेटिकली सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं, जिसमें हमें a नॉट की वैल्यू मिलती है एफ के माइनस एफ के माइनस 1 ओवर एक्स के माइनस 1, और a1 की वैल्यू मिलती है एक्स के एफ के माइनस 1 माइनस एक्स के माइनस 1 एफ के, मतलब एफ के माइनस 1 का मतलब है फंक्शन एट के माइनस 1, और यहाँ पे मतलब है एफ के मतलब फंक्शन एट एक्स के, एंड डिवाइडेड बाय एक्स के माइनस 1. फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, here from equation 2 and 3, the next approximation of xk plus 1 to the root is given by xk plus 1 is equals to xk minus 1 fk minus xk fk minus 1 over fk minus 1, and which may also be written as xk plus 1 is equals to xk minus xk minus 1 over fk minus 1, और कॉमन ले लिया fk, where k is equals to 1 2 3 and so on.
This is called secant or chord method. Now let us understand this by the graph of secant method. So in this method we replace the function f of x by the straight line, this line, straight line, or a chord passing through the points xk, fk. This is xk, fk. क्योंकि मैं x नॉट लिख रही हूँ इधर, तो मैं इसको कहूँगी x नॉट, f नॉट, और यहाँ पर x1 तो x1, f1, और यहाँ पर आपके पास उस तरीके से आएगा. तो देखिए पहले कि यहाँ पर f of x k by straight line or a chord passing through the points xk, fk and xk minus 1, fk minus 1. अगर मैं xk को 1 की जगह रख रही हूँ, k is equals to 1, because I have already discussed here that the k is equals to, जैसे यहाँ पे है k varies from 1 2 3 and so on. तो वैसे ही आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पर k is equals to 1, k is equals to 2. तो वैसे ही इक्वेशन बन जाएगी. तो हमारे दो पॉइंट्स हो जाएंगे, जैसे k1 यहाँ पे k is equals to 1 तो f1 x1 और k is equals to 0. या फिर हमारे पास 2 जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पॉइंट बनेगा इस ग्राफ में. तो यहाँ आएगा x2, f2, उसी तरीके से सो ऑन. तो यहाँ पर हमारे पास एंड टेक द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद x एक्सिस एज द नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट. अब जैसे कि तो इसमें हमारे पास आएगा कि हमने दो पॉइंट्स ऐसे यूज़ करे जिसमें फंक्शन एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव आता हो. तो वो दो पॉइंट्स आपने चूज़ कर लिए. जैसे कि यहाँ पर ये फंक्शन है, अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं तो जहाँ पर भी वो एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव आती है फंक्शन की वैल्यू, वो दो पॉइंट्स हमारे पास स्टार्टिंग के इटरेशन के लिए यूज़ होंगे. उसके बाद आपने उसमें सीकेंट मेथड का फॉर्मूला यूज़ करना है, जो कि आपके पास सेकेंड मेथड का फॉर्मूला ये है. ओके. तो अगर k की वैल्यू यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हैं तो x1 आपके पास आ रहा है, बट ऑलरेडी हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं x0 एंड x1. तो हम यहाँ पे 1 ही चूज़ करते हैं सो दैट x2 हमारे पास आएगा. और x2 हमारे पास जब आएगा तो यहाँ पर k की वैल्यू होगी 1 और यहाँ पे आ जाएगा x0. ये x0 हो गया, ये x1 हो गया. इसी तरीके से ये f0 हो गया, ये f1 हो गया और यहाँ पे f1 आ जाएगा. हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और फिर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी. ओके. तो जब हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमने उसी वैल्यू को यूज़ करना है, वेदर इट इज़ नेगेटिव, वेदर इट इज़ पॉजिटिव. ओके, अंडरस्टूड. देयरफॉर वी कैन से कि आपके पास जो भी फंक्शन होता है उसकी जो भी अप्रॉक्सीमेशन होती है, हमने सिर्फ स्टार्टिंग के पॉइंट्स चूज़ करने होते हैं जो सो दैट द फंक्शन इज़ इधर पॉजिटिव और दूसरे के लिए नेगेटिव होता है. तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है. वी हैव टू टेक द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद द एक्स एक्सिस एज द नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट. तो हमारे पास जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन बनी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनी, दो कोई भी पॉइंट ले लिया आपने. वैसे तो हमारे को इजी तभी रहेगा जब पॉइंट्स नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू दे फंक्शन की. बट अगर हमने कोई भी दो पॉइंट्स ले लिया जैसे यहाँ पे तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव रह रही है. फिर भी हमारे पास अब सीकेंट या कॉर्ड आती है. तो हमने नेक्स्ट क्या किया, यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन जो कॉर्ड बना दिया इन दो पॉइंट्स के साथ और उसका इंटरसेक्शन देखा यहाँ एक्स एक्सिस के साथ. यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंगली फंक्शन की वैल्यू आपने लिख ली f2 और x2 हो गया वो पॉइंट जहाँ पे उसने कट किया. नाउ नेक्स्ट कॉर्ड हमें जो ज्वाइन करके बनानी है वो इन दोनों को पॉइंट्स को, वेदर इट इज़ पॉजिटिव वेदर इज नेगेटिव, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. तो ये है हमारे पास सीकेंट मेथड. Whereas in regular Falsi method, the formula will remain same, but the choice of your points become different. अब वो कैसे different होंगे,
here if the approximations, अब ये आपके पास आ रहा है रेगुलर फॉल्सी मेथड का ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे रेगुलर फॉल्सी मेथड में क्या होगा कि इफ द अप्रोक्सीमेशन आर सच दैट f of k into f of k minus 1 is less than 0, then the method which is stated in equation number 4 and 5, जो हमने 4 और 5 इक्वेशंस में लिखा है, जैसे ये वाला जो आपके पास फॉर्मूला है 4 and 5, method will remain same but the choice of points become different। और वो कैसे डिफरेंट होगा, तो अगर जब हम ये चीज़ चेक कर लें दोनों पॉइंट्स में, जैसे यहाँ पर तो पॉजिटिव आ रहा है, वेदर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास फिर पॉजिटिव आ रहा है, चाहे कुछ होता, पॉजिटिव आता नेगेटिव आता, हमने वही चूज़ करना है जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है। लेकिन रेगुलर फॉल्सी में हमें क्या करना है, वी हैव टू चूज़ वन, एक पॉइंट ऐसा जिस पे फंक्शन पॉजिटिव हो और एक पॉइंट ऐसा जिसमें फंक्शन नेगेटिव हो, सो दैट ये जो प्रोडक्ट है दो अप्रॉक्सीमेशंस का, जो फंक्शन की वैल्यूज आती हैं उनको लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये ग्राफिकली हमारे पास ये रहेगा x0 f0 द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, और एक ऐसा पॉइंट जिसमें आपके पास ये नेगेटिव आता हो, वो x1 पे आ गया। फिर हमने क्या किया, हमने बना दिया यहाँ पे वही फंक्शन, क्योंकि वो कॉर्ड बनेगी तो आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो टच करेगा वो आ गया नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमने ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट नहीं लेना है, हमें लेना है जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हो, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट इसी से हमने कॉर्ड बना देनी है, यहाँ कॉर्ड बन गई। फिर उसने कहाँ एक्स एक्सिस पे कट किया, वो आ गया x3 पॉइंट। x3 पॉइंट से हमने यहाँ पे चेक किया उसकी कॉरस्पॉन्डिंगली जो आपका कर्व है, जो एक्चुअली आपका फंक्शन है, उस पे क्या वैल्यू हो रही है, तो ये फंक्शन बन गया x3 f3। और जब x3 f3 आ गया तो इसको हमने फिर कॉर्ड बनाई उसी पॉइंट के साथ, जो एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। इसी तरीके से हमारा क्लोज टू द रूट आ जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब क्या है, एट एक्सिस पे आपके पास जो एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। नाउ सिंस xk minus 1, fk minus 1, xk, fk are known before the start of iteration। जब हम इटरेशन कर रहे होते हैं उससे पहले ही हमें वो पता होती है, बिकॉज एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हम ले रहे हैं जो चूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड में स्टार्टिंग में 2 वैल्यूज़ अज्यूम करते हैं, देयरफॉर यहाँ पर भी द सेकेंड एंड द रेगुलर फॉल्सी मेथड रिक्वायर 1 फंक्शन इवैल्यूएशन पर इटरेशन। अब लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल in our next video।